Good morning everyone. This is Poonam here, your social science teacher from Vishya School Una. Dear students, I hope you all are fine. Today we will discuss chapter 1 question answers of economics and name of the chapter is development. So let's start. Question number 1 is development of a country is generally determined by. We have four options. It's per capita income, its average literacy rate, health status of its people and all the above. So right option is A option. Development of a country is generally determined by its per capita income. Second question is which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? So four options are given here. A is Bangladesh, B is Sri Lanka, C is Nepal and D is Pakistan. So right answer will be B option, that is Sri Lanka. Third question is assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is 5,000. If the income of these families is 4,000, 7,000, 3,000, what is the income of the fourth family? So students, here you can see total income of 4 families कितनी है 5,000. So families कितनी है 4, we will divide it with 4, तो it will be 20,000. Total income of 3 families कितनी है, हम लोग इसको ऐड कर देंगे 4,000, 7,000 and 3,000, that will be 14,000. So income of the fourth family is 20,000 minus 14,000, that is 6,000 rupees. So D option is the right answer. Question number 4 is what is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criteria, if any? So answer of this question is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries is average per capita income. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं. द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 82,40,192 per annum and above in 2013 are considered as rich countries, whereas countries with per capita income of 6,76,011.5 or less are considered as low income countries. तो लिमिटेशंस क्या है इस क्राइटेरिया की? इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ दिस एवरेज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द इंडिविजुअल कंट्रीज. तो ये जो है ये वाला सिस्टम, ये जो क्राइटेरिया है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जो एवरेज इनकम है वो किसी कंट्री के लोगों के बीच में किस तरह से डिवाइडेड है. टू कंट्रीज विद द सेम पर कैपिटा इनकम माइट बी वेरी डिफरेंट विद रिगार्ड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस. ऐसा नहीं है कि किसी दो कंट्रीज में जिनकी पर कैपिटा इनकम सेम है उसमें जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में, सिटीजन्स में, वो सेम हो. तो वन कंट्री माइट हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम व्हाइल द अदर कंट्री माइट हैव ग्रेट डिस्पैरिटीज बिटवीन द रिच एंड द पुअर. तो हो सकता है किसी एक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो इनकम का और किसी दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज हो, डिफरेंस हो रिच और पुअर के बीच में. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन what respects is the criteria used by the UNDP? UNDP means United Nations Development Program for measuring development difference from the one used by the World Bank. तो UNDP है जो उसका क्राइटेरिया क्या है और वर्ल्ड बैंक जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट UNDP. तो इट हैज टेकन एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम एज द बेस. Or countries have been ranked. It is also considered as a broader concept of development. तो UNDP जो है उनके जो वो किस तरह से मेजर करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने एजुकेशन को, हेल्थ को और पर कैपिटा इनकम को इसके बेस के रूप में इंक्लूड किया है और उन्होंने कंट्रीज को रैंक दिए हैं और इसके साथ साथ ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है डेवलपमेंट का. तो वर्ल्ड बैंक जो है उनका क्राइटेरिया क्या है? इट यूजेस पर कैपिटा इनकम एज इट्स बेस फॉर कंपैरिजन. तो ये कंपैरिजन के लिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखते हैं. इट इज कंसीडर्ड एज ए नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो जिस तरह से यूएनडीपी को ब्रॉडर कंसेप्ट के रूप में देखा जाता है तो वर्ल्ड बैंक को नैरो कंसेप्ट के रूप में देखते हैं. तो अंडर दिस कंसेप्ट कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रिच, मिडिल एंड पुअर. तो इसमें 3 कैटेगरीज में जो कंट्रीज डिवाइड हैं, रिच कंट्रीज, मिडिल कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 is why do we use averages? Are there any limitations to their use? Illustrate with your own examples related to development. तो averages का यूज क्यों करते हैं हम लोग?
Answer is we use averages for a better understanding. For comparison between countries, total income is not a much useful measure. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार टोटल इनकम को मेजर करना, तो हम लोग एवरेज का यूज कर लेते हैं. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये जानना, क्योंकि अलग अलग जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री में, कोई भी पर्सन कितना अर्न कर रहा है, तो इसलिए एवरेजेस को हम लोग ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यूज बाय द वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 82,40,192 per annum and above in 2013 are called rich countries, and those with per capita income of 6,76,011.5 per annum or less are called लो इनकम कंट्रीज. तो जो इतना अर्न करते हैं वो लो अर्निंग कंट्रीज हैं. देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो ऑन दिस क्राइटेरिया. Although the country may be rich, there may not be equal distribution of income. A small number of people may be extremely rich and the masses may be poor. Hence, while average income is useful for comparison, it doesn't tell us how this income is distributed among people. तो जब हम लोग देखिए किसी कंट्री में रिच लोग भी हो सकते हैं और पुअर लोग भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो जब हम लोग एवरेज का यूज़ करते हैं, क्राइटेरिया एवरेज वाले क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं कंपैरिजन में, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ये बताना कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ इनकम का सभी लोगों में. क्वेश्चन नंबर 7 इज केरला विद लोअर पर कैपिटा has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. तो क्वेश्चन है कि केरला में जो पर कैपिटा इनकम है वो पंजाब से कम है, फिर भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में पंजाब से आगे है. तो क्या लगता है आपको कि पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूजफुल है कंपेयर करने में स्टेट्स के लिए या फिर नहीं? तो आप अपने थॉट्स बता सकते हो, बट आई विल टेल यू माइन that yes, I do agree that money income और per capita income is not the only factor. तो इसमें और भी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है पर कैपिटा इनकम के साथ साथ, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो. दीज ऑल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट. When compared in these factors, Kerala is considered to be better than Punjab. तो देखिए infant mortality rate is 11 in Kerala compared to Punjab which is 49. So infant mortality rate केरला में 11 है जबकि पंजाब में 49 है. लिटरेसी रेट जो है केरला में 91% है और पंजाब में 70% है. नेट अटेंडेंस रेशो जो है 1st to 5th वो केरला में 91 है और पंजाब में 81 है. तो इस तरह केरला इन तीनों में पंजाब से आगे है. तो ड्यू टू सम मेंशन्ड एडवांटेजेस केरला हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब, चाहे उसमें लोअर पर कैपिटा इनकम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Find out the present sources of energy used by people in India. What could be the possibilities 50 years from now? तो प्रेजेंट में कौन सी एनर्जी के रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग जो इंडिया के हैं पीपल वो यूज करते हैं और 50 इयर्स के बाद इंडिया में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आंसर इज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी आर सम ऑफ द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज बाय पीपल इन इंडिया. तो इंडिया में हम लोग कोल का, पेट्रोलियम का और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक बार एग्जॉस्ट करते हैं हम लोग तो वो खत्म हो जाते हैं. These natural resources would be exhausted after a few years if they are not used judicially. तो possibilities for energy resources after 50 years can be, तो कौन कौन सी possibilities होंगी 50 years के बाद? Nuclear energy from radioactive elements, solar energy and wind energy etc. ये non-exhaustive resources हैं which may be utilized without interruption for years and years और हम लोग कई सालों तक इसका use कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सस्टेनेबिलिटी का, ये डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आंसर इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन द rationalization of the use of natural resources in such a manner that what we achieve today should not be at the cost of what ought to be achieved tomorrow. So it is important as it raises the level of development without increasing the cost of quality of life at the future generations. सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से हमारा मीनिंग है कि हमें रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करना चाहिए कि वो हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उसको बचा कर रख सकें. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज फॉर बोथ डेवलपमेंट एज वेल एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड लेज एक्स्ट्रा एम्फेसिस
ऑन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। तो डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है और ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन है। मीन्स हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर यूज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज का। 10th question is, the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is the statement relevant to the discussion of development? तो मीन्स अगर तो किसी की नीड है तो उसको तो रिसोर्सेज फुलफिल कर सकते हैं चाहे जितने भी लोग हैं, और अगर किसी को ग्रीड है किसी चीज़ की, रिसोर्स की, तो वो तो चाहे सिंगल पर्सन हो उसको भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, according to the statement, the natural resources of the earth are overused in the name of development. तो कई बार डेवलपमेंट के नाम पे क्या होता है, रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं हम लोग। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट टुडेज जनरेशन हैज बिकम सो ग्रीडी दैट फॉर देयर ओन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट दे रिसोर्ट टू एक्टिविटीज लाइक, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिससे उनकी ग्रीड का पता लगता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, fodder extraction, encroachment into forest lands, indiscrimination use of agrochemical, extraction of groundwater in excess of recharge capacity, etc. सो आज की जो जनरेशन है वो अपनी ग्रीड के लिए ये सब चीज़ें करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो आप ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास। तो वी कैन गिव सम एग्जांपल्स की बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल, डिफॉरेस्टेशन, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उसमें डिग्रेडेशन हो रही है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 डेवलपमेंट। रिवाइज एंड लर्न दीज क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।